Hello students, welcome back to the second session of our 5th standard English chapter number 4 Street Games of India. Yes, in the first session we have completed few games, which were played by the writer. Okay, now few games also left. With the explanation we will continue. But before we start the second session, let me revise the first session. I think I asked some questions to you and I also show you some images of the street games of India. Did you play any kind of game in your childhood, or are you still playing this kind of games? Yes, आंसर में बी यस ओनली. हाँ, हम बहुत सारी गेम्स जो हम कहते हैं ना स्ट्रीट गेम्स वो खेलते हैं. स्पेशली एज आई टोल्ड यू गली क्रिकेट, यस, मड फुटबॉल, देन गोली, यस, देन लड्डू, और वी कैन से व्हाट, जिसे हम कहते हैं ना भमेड़ा, जिसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप, टॉप स्पिनिंग, देन आँख में चोली, यस, आँख में चोली ऑल्सो देयर, which is also one of the famous, or we can say very popular game. So these are the street games of India. Here in this unit the main intention of the writer is to remember the old games which were played by the small childrens. Okay, as I told you, right now you are the childrens of 21st century, so you should have the mobiles in your hands, computers before your eyes, and mobiles, or we can say computers, and different I can say the mobile games also. But we have to play the street games to, we can say, stay healthy. In right now we have to stay, or we have to take care of ourselves, so we have to stay indoors. So there are indoor games also. There are many indoor games, as I mentioned also in the first session. Like the चार चीट, जिसे हम कहते हैं ना, जो चार चीट होती है, चोर सब सिपाही, वजीर की, these are kinds of games also. Then different kinds of, we can say, ludo also. Then we can say snake and ladders. I think you have all this played all these games. जिसे हम कहते हैं ना games which can also consume the time also and is very interesting also. These are the indoor games. So because of this lockdown and because of this, I can say, the epidemic, or we can say the because of the disease COVID-19, we have to stay indoor the games, and we can play as many as games to pass our time and to enjoy the time also. But with the, you can say, or I can say, the learning process or the teaching learning process. So let's start the fourth chapter from where we will stop. Yes, we had stopped. Yes, these are the hard words, as I told you, and this will be in the third session, in which we will talk about the exercise, question answers, short answers and long answers. Yes, so our writer talk about the first game. That game is called Goli. Yes, did you remember how to play this game? You need some marbles, then you need some kind of, we can say, players, or we can say children's. You need some kind of small area, land area, little bit flat. Yes, we need a flat land area in which we have to make a kind of duck. एक खड्डा हमें यहाँ पे ऐसे बनाना है, जिसमें हमें मार्बल्स को फिंगर से स्ट्रक करके उसे हम कहते हैं कि गोल करना है, या फिर हमें उसे उस खड्डे में डालना है. द प्लेयर who will struck all the marbles first in this one, that player will win. The player also, he or she also try to struck the other players marbles into the duck, or we can say जो खड्डा होता है उसमें दूसरे प्लेयर्स के भी मार्बल्स को वो ट्राई करते हैं जीतने की. Yes, here in this game you will lose the marbles. So our also writer lost many goalies to the older players, because older players are very smart, or we can say they are very skillful. Depth means very quick and very clever players. Then after the goalie, he remembered the one more kind of game which is called Aankh Mein Choli, or the English name of this one is, it is written Blind Man's Buff. So this game is also very popular. And I think all of you, or all of us also has played this game in our childhood. As I told you, I have also played all these games.
but you also have to play these games to enjoy the street games. Okay, these are the game, okay, which are the, we can say, very we can say safe games, or we can say very enjoyable and very funny games. Okay, yes, but we need few players to play these games. Alone we cannot play these games. So right now, few games which are outside, we can say outside of the home, is not going to be played right now. But after the, we can say, a kind of restrictions over, okay, after the permission, okay, we can play these games. These are the games of India. These games are the identity of India. वो हमारी भारत की पहचान है. This kind of street games. ओके, और जितनी इंडिया में स्ट्रीट गेम्स है शायद ही किसी दूसरी कंट्री में हो सकती है. ओके, सो वी आर प्राउड ऑफ दिस. यस, we play this kind of street games, okay, and we are Indians. So here also another game, it is called Aankh Micholi, which was also very liked by our writer also, and he also do a kind of cheating also when he saw the means her cousin, okay, hiding somewhere, and he saw the, we can say, by peeping outside the fingers. Okay, here as I told you कि प्लेयर को आँख में एक कॉटन का कपड़ा होता है, वो ढकना होता है जिससे उसे कुछ दिखाई ना दे. बट दे सम हाउ ट्राई टू मैनेज और ट्राई टू वी कैन से सी दिस थिंग्स. ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल चीटिंग्स. सारी गेम्स में हर कोई चीट करता है. ओके, लेकिन वो कभी कभी पकड़ा जाता है, कभी कभी नहीं पकड़ा जाता है. हाँ, ऑल दी गेम्स हैव अ काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स. यस, सेट ऑफ रूल्स. वो रूल्स ना हो तो आप गेम्स अच्छे से खेल नहीं सकते. ओके, और गेम्स का मज़े भी नहीं आते अगर रूल्स ना हो तो. सो ऑल दी रूल्स, ओके, हैव देयर, यू कैन से, मीनिंग्स. उनकी कोई ना कोई अहमियत होती है. जितने भी रूल्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ अहमियत होती है इन दी गेम. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल गेम्स, ओके, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, चेस, कैरम, जितने भी इंटरनेशनल गेम्स है, वॉलीबॉल, ऑल दिस गेम्स हैव द सेट ऑफ रूल्स, इंटरनेशनल रूल्स. तो वो रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है. हर कोई जैसे तैसे नहीं खेल सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से. ओके, so in cricket you find the umpires, okay, in tennis also, or you can say in volleyball also the referees, umpires are there, in football also. So we have to play these games under a kind of set of rules. Okay, so these are the games which were talked about the writer. Now we will continue this second session with the explanation of the chapter number 4, from where we had left. Okay, now we will start the second session. So he was talking about the game which he has played. Okay, that was the name of the game is, yes, Aankh Micholi. After that one, yes, let's start it. I had to wait till I was over 10 years old before I learned the skill of spinning a lattu or top. हमारे राइटर को 10 साल तक, तो 10 साल से पहले तक तो जो छोटी छोटी गेम्स होती थी वो खेलनी होती थी. लेकिन अब जो बड़े हो जाए, 10 ईयर्स के बाद अगर आप हो जाते हैं, थोड़े बड़े ग्रोन अप हो जाते हैं, तो आपको भी दूसरी गेम्स खेलने में मज़ा आता है और आपको सीखना भी पड़ता है. वन ऑफ देम गेम इज़ दिस वन. ओके, दिस गेम इज़ कॉल्ड लट्टू एंड इट इज़ कॉल्ड टॉप, स्पिनिंग ऑफ द टॉप, जिसे हम कहते हैं ना भमिंडा. ओके, हियर दिस इज मेड अप ऑफ वुडन और आई थिंक मेड अप ऑफ द प्लास्टिक. Right now the, we can say, ready-made tops are also made by the factories, okay, made up of plastics also. This game requires a deft hand and enough pocket money to buy the tops made up of mud or wood. As I told you a few years ago also, this, okay, tops are made up of mud also, okay, clay, and also made up of wood. But right now also these tops are made up of plastics also, okay, ready-made. You can buy it from the shop. A string is wrapped around the lower part of the lattu. Yes, the meaning of this one. एक डोरी होती है जिसे हम यहाँ से नीचे से उसे रैप करके, ओके, उसके टॉप तक चले जाते हैं रैप करके. ओके, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग. ओके, a string is wrapped around the lower part of the lattu. This is tossed to the ground with a hard jerk and the string is released, causing the lattu to spin and spin. जो लट्टू होता है उसके चारों तरफ हमें जो स्ट्रिंग होती है वो रैप करनी होती है,
फिर अपने हाथ से लट्टू को एक ऐसे जर्क से, एज आई टोल्ड यू, वेरी हार्ड एंड वेरी सडन, वेरी क्विक जर्क, बहुत अच्छे से उसे अर्थ पे, हम कह सकते हैं कि जमीन पे या किसी सरफेस के ऊपर उसे हम क्या करते हैं, स्पिन करने के लिए उसे हम कर्स करते हैं, मतलब उसे हम फेंकते हैं। फेंकने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को लग जाए, बट हम ऐसे फेंकते हैं, ऐसे स्किलफुली, टेक्निकली, कि वो जो टॉप है, वो जो उसकी जो निडल है, जिसके हम कहते हैं ना एरो है, उसके ऊपर वो स्पिन होता हो। ओके, स्पिनिंग लाइक दिस वन ओनली, ओके, विथ अ फोर्स। सो दिस इज कॉल्ड टॉप, स्पिनिंग ऑफ टॉप, लट्टू. But to play this game, we have to be very careful because this is very, we can say, very sharp end. Okay, very sharp needle also. तो किसी को लग ना जाए उसकी हमें टेक केयर करनी होती है. Yes, I remember saving up my pocket money to buy my first lattu. Yes, our writer, okay, saved the pocket money to buy the first lattu. But I swung it clumsily and beautiful earthen top broke. लेकिन उन्होंने कुछ कह सकते कि केयरलेसली उन्हें फेंका जमीन पे, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, वी कैन से earthen means made up of mud, so it's broke down, okay, into pieces. So yes, if you did not care about the top, which is made up of, we can say, mud or earthen top, okay, it can be break easily. Okay, so our writer's first off is, okay, broken by himself, okay, mistakenly. Afterwards I practiced with a small wooden one and eventually learned to toss the earthen ones without breaking them. Okay, तो पहले उन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस की जो टॉप वुडन के बने थे. ओके, उसके बाद उन्होंने जो अर्थन के, मतलब जो मड के बने होते, उसके साथ उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की और उन्हें टॉस करना सीख लिया. टॉप टॉस करके उसके स्पिन करना सीख लिया विदाउट ब्रेकिंग दैम, विदाउट ब्रेकिंग दैम. ओके, yes, I will repeat. Afterwards I practiced with a small wooden one and eventually learned to toss the earthen ones without breaking them. उन्हें तोड़े बिना मैंने उन्हें सीख लिया. That is the description. When I was 14, I was allowed to join the kabaddi team. To play kabaddi, you must be quick and strong. You also need the ability to hold your breath for long and to be a master of battle tactics. Yes, since playing this game is almost like real warfare. Yes, here our poet is talking about the bigger students, or we can say bigger boys game, and that game name is kabaddi. Small students can play the game, but we can say we have to take care about this one. Okay, we have to take, yes, to play this game, first of all we have to take care about our body, that it can hurt. Okay, yes, to play this game we need a kind of, we can say, area which is not of the grass but of, we can say, sandy area, or we can say somehow it is a area covered with the soil, soft soil. Okay, and we have to draw these lines to make this ground. Okay, and we have to divide the players into two teams. Okay, one team will have maximum 7 players. Remember how many players? 7 players. Yes, I will explain the game, how to play this kabaddi, then I will explain what is written and what is the experience of our writer also. So to play this game, okay, remember the first session also, in which I told also, okay, after explaining that image, that one person, okay, from the opposite team will go to the another team's area by crossing this line. This is called the middle line, and he or she has to speak the kabaddi word continuously, like kabaddi, 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 kabaddi. Okay, without breaking, or without, we can say, breaking the breath also, or word also, kabaddi. Now kabaddi word is not only the word which we have to spoke, okay, or we have to speak continuously. We have to speak many different words. Okay, one of the word is hututu also. Okay, famous words, but kabaddi is the common word, or we can say the main word. Meanwhile, speaking the kabaddi, you have to touch either any of the player, either one player or more than one player, and by touching and by crossing another line over here, okay, you have to come back to the
your team's area. Okay, your team's, we can say the portion. This one is the 2 portion. Okay, for the both the teams. और अगर आप कबड्डी बोलते बोलते या किसी को या फिर लाइन क्रॉस करते करते अगर आप पकड़े जाते हैं, ओके, यू विल बी कॉट, ओके, तो आपको कैसे भी करके ये लाइन से क्रॉस करनी है, आइदर बाय हैंड और बाय दैट फुट और बाय योर बॉडी. अगर आप ये लाइन क्रॉस नहीं कर पाते हैं देन यू विल बी आउट. द सेम थिंग, द सेम रूल अप्लाई टू दिस टीम ऑल्सो. आफ्टर द टर्न ऑफ योर टीम, ओके, द ऑपोजिट टीम्स टर्न विल कम. एनी ऑफ दिस प्लेयर विल कम एज अ राइडर. मैंने कहा था कि वो राइडर बन के आपकी टीम में आता है. एंड द सेम काइंड ऑफ रूल्स आर देयर. ओके, so let's see what was the experience of our poet. Yes, when I was 14 I was allowed to join the kabaddi team. To play kabaddi you must be quick and strong. You also need to ability to hold your breath for long and to be master of battle tactics. Battle tactics means जो हम कहते हैं ना कि प्लान. As I told you कि आप कहाँ से जाएंगे, राइट से जाएंगे, लेफ्ट से जाएंगे, आप किसको टच करेंगे, किसको नहीं करेंगे. दिस विल बी वेरी क्विक इन योर माइंड. ओके, आपको अपने दिमाग में बहुत पहले से वो सूचना रखना पड़ता है एज अ राइडर. यस, सिंस प्लेइंग दिस गेम इज ऑलमोस्ट लाइक अ रियल वॉरफेयर. वॉरफेयर का मतलब कि जैसे कि आप लड़ रहे हो युद्ध में किसी को मारने के लिए. बट दिस गेम इज, एज आई टोल्ड यू, लिटल बिट वी हैव टू केयर फॉर आवर बॉडी ऑल्सो, बिकॉज दिस गेम कैन कॉज सीरियस इंजरीज. एंकल की इंजरी हो सकती है, नीज की हो सकती है, ओके, हेड की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेयर टकरा भी सकते हैं विद अ ग्रेट फोर्स. ओके, एक पकड़ने के लिए और एक दौड़ने के लिए जो फोर्स यूज होता है उसमें हम टकरा भी सकते हैं. सो हियर वी हैव टू बी केयरफुल, ओके, व्हाइल प्लेइंग दिस गेम. सो यस, बिगर बॉयज कैन प्ले दिस गेम इजीली. फॉर स्मॉलर और वी कैन से द स्टूडेंट्स who or which are not grown up, okay, they don't have to play this kind of game. It is a kind of outdoor game. And yes, by playing this game we can say, okay, fit your body. Okay, you have to become very strong and you have to become very quick. जो आपकी मूवमेंट्स होनी चाहिए इस गेम में वो बहुत क्विक होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए. आपकी ब्रीथ पे आपका कंट्रोल होना चाहिए एटलीस्ट अप टू 30 सेकेंड्स. जो ऑफिशियल हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो रूल होता है वो 30 सेकेंड की होती है, जिसे कहते हैं रेड. ओके, 30 to 40 seconds. ओके, then this would be the different rules. Yes, a line is drawn. How to play this game? A line is drawn on sand or soft earth. 2 teams with 5 to 10 players or more stand on either side of the line. A member of one team crosses the line chanting kabaddi kabaddi under his breath without stopping. If he is able to touch 1 or 2 players from the opposing team while saying kabaddi, the person he touches is dead. The visitor then runs back to his side. मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे ये गेम्स खेलते हैं. इसमें से पहली जो टीम होती है उसकी या कोई भी एक टीम में से कोई एक प्लेयर फर्स्ट राइडर बन के दूसरी टीम पे अटैक करता है. फर्स्ट ही हैज़ टू क्रॉस दी मिडल लाइन एंड देन अनदर लाइन, इट इज़ कॉल्ड बॉल्क लाइन. उस लाइन को क्रॉस करना होता है, ओके, विच इज़ ऑल्सो देयर इन द अपोजिट टीम. देन दिस प्लेयर हैज़ टू चैंट दी कबड्डी कबड्डी वर्ड कंटिन्यूसली. जो प्लेयर राइडर बन के जाता है उसे कबड्डी कबड्डी वर्ड कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है ब्रीथिंग के साथ. ही और सी कैन नॉट स्टॉप, वो खड़े नहीं रह सकते हैं. देन विद द हेल्प ऑफ वी कैन से बैटल टैक्टिक्स, उन्हें सोचना पड़ता है कि ये राइट साइड से जाना है कि लेफ्ट साइड से जाना है कि बीच से जाना है. यानी इन प्लेयर्स को उन्हें पीछे रखना है. अगर वो आगे आ जाते हैं तो इस प्लेयर को वो कैच कर लेंगे और पकड़ लेंगे और उन्हें ये जो मैं कह सकता हूँ मिडल लाइन उसे वापस क्रॉस करने नहीं देंगे. अगर वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि टाइम हो जाता है या उनकी ब्रीथ स्टॉप हो जाती है, दिस पर्सन इज कॉल्ड डेड. इन कबड्डी डेड मतलब मरने जाना, आउट. जैसे क्रिकेट का वर्ड है आउट, वैसे डेड मीन्स गॉन. इस प्लेयर को टीम से बाहर बैठना होता है और अपनी रिवाइवल की जो हम कहते हैं रिवाइवल करना, वापस जिंदा होने के लिए उसे वेट करना पड़ता है. अगर अनदर सिचुएशन, अगर ये प्लेयर दिस प्लेयर और दिस एनी ऑफ द प्लेयर किसी भी प्लेयर को टच करके कबड्डी कबड्डी बोल के वापस इस अपनी टीम में वापस आ जाते हैं सेफली,
तो वो 2 प्लेयर या 3 प्लेयर या 1 प्लेयर जिन्हें वो टच करते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड डेड। डेड अगेन आउट, उन्हें भी अपने टीम से बाहर बैठना होता है। नाउ वन सम मोर वी कैन सी द रूल्स आर देयर। जिस भी टीम का सबसे ज़्यादा प्लेयर आउट हो जाते हैं उनकी टीम को कम पॉइंट मिलते हैं, और जिनके जो आउट करते हैं उन्हें पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। ऑब्वियसली ऑल द गेम्स आर प्लेड बिकॉज ऑफ अ काइंड ऑफ रन्स और स्कोर और पॉइंट्स। यस, दिस गेम इज ऑल्सो प्लेड ऑन दी पॉइंट्स। जिसके पॉइंट्स ज़्यादा वो जीत जाती है। लेकिन एक बार आपकी पूरी टीम आउट होने के बाद आपको फिर से चांस मिलता है। ओके, द चांस विल बी गिवन टू अगेन एंड अगेन टू इम्प्रूव योर स्कोर, टू इम्प्रूव योर गेम। हाँ, फिर हाफ टाइम होता है। हाफ टाइम का मतलब होता है कि ब्रेक, ऐसे एक ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद टीम्स जो होती है वो इंटरचेंज होती है, मतलब जो टीम यहाँ खेल रही थी वो वहाँ जाती है उस मैदान में, और जो उस ग्राउंड में जो टीम खेल रही थी वो इस तरफ आती है। आफ्टर देन द रूल्स आर सेम एंड द रूल्स आर कॉमन फॉर ऑल द टीम्स। हाँ, एज आई टोल्ड यू, स्ट्रीट गेम्स के अपने खुद के रूल्स होते हैं और इंटरनेशनल गेम्स के अपने खुद के रूल्स होते हैं। सो हमें जो स्ट्रीट गेम्स खेलते हैं तब वो रूल यूज़ करने होते हैं या फिर अप्लाई करने होते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनली खेलना चाहते हैं तब रूल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कबड्डी गेम से फॉर एग्जांपल, कबड्डी गेम इज़ प्लेड ऑन अ मैट। मैट का मेरा मतलब होता है कि एक सॉफ्ट, जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट होता है, जिसे ले डाउन कर दिया जाता है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, और एक इंडोर गेम्स में। नाउ कबड्डी इज़ इंडोर गेम, ओके, इंटरनेशनली। लेकिन जब स्ट्रीट गेम्स में खेलते हो तो हम बाहर ही खेलते हैं, एरिया में खेलते हैं, ओके, ओपन लैंड में खेलते हैं, ओपन स्पेस में खेलते हैं। बट इंटरनेशनली इट इज़ इन द क्लोज्ड डोर, ओके, इन अ स्टेडियम, जिसे हम स्टेडियम कहते हैं, जहाँ से बहुत सारे स्पेक्टेकल्स, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो देखने आते हैं वो प्लेयर देख सकते हैं। ओके, राउंड सर्कुलर शेप में हम कह सकते हैं स्टेडियम्स बने होते हैं, लाइक क्रिकेट वन, फुटबॉल वन। यस, so this is how we can play this kabaddi game. Yes, however, if the visitor is caught or he stops saying kabaddi, he is dead, as I told you. The teams take turns to visit each other until all members of one team are dead. जब तक कि दूसरी टीम के सारे मेंबर्स डेड नहीं हो जाते, हम कह सकते कि आउट नहीं हो सकते हमारी लोकल लैंग्वेज में, तब तक उन्हें टर्न बाय टर्न रेड्स लेने जानी होती है। Yes, friends or students, I did not speak the words. So the person who takes this first chance, it is called a raider, and the opposite team's players are called defenders. उनमें डिफेंडर्स भी होते हैं कि जो उन्हें अच्छी टेक्निक होती है पकड़ने की, होल्ड करने की, खींचने की, जो उनकी है, जिन कहते हैं कि आर्म स्ट्रांग होती है, उनकी पकड़ स्ट्रांग होती है। 2 टाइप्स के प्लेयर होते हैं, एक होते हैं डिफेंडर और एक होते हैं रेडर। रेडर मतलब जो आउट करने जाते हैं इस ऑपोजिट टीम में, और डिफेंडर मतलब जो वो पकड़ के आउट करना चाहते हैं रेडर्स को। सो दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स इन द कबड्डी, डिफेंडर एंड रेडर। ओके, यस, लेट मी स्टार्ट अगेन। हाउएवर, इफ द विजिटर इज कॉट और ही स्टॉप सेइंग कबड्डी, ही इज डेड। द टीम्स टेक टर्न्स टू विजिट ईच अदर until all members of one team are dead. जो टीम के रेडर है वो 1 by 1 एक दूसरे की टीम में अटैक करते हैं, रेडिंग से टर्न लेते हैं, जब तक कि सारे मेंबर्स डेड ना हो जाए, आउट ना हो जाए। आई लर्न हाउ टू होल्ड माई ब्रीथ एंड डेवलप सम डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है कि कुछ हौसला, कुछ ताकत आना। ओके, आई लर्न हाउ टू होल्ड माई ब्रीथ एंड डेवलप सम डेयरिंग, बट I could not survive for too long before being taken as a prisoner of war. Yes, prisoner of war is a word. Okay, उसका मतलब ये होता है कि आपको अगर किसी भी जंग में, या हम कह सकते हैं कि मैदान में, या किसी की हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी बैटल में आप पकड़े जाते हैं, तो आपको पकड़ के साइड में रख दिया जाता है। ओके, एज अ प्रिजनर। प्रिजनर का मतलब कैदी, कैदी जिसे कहते हैं, कैदी, वॉर का कैदी जिसे कहते हैं, कि जब आप पकड़े जाते हैं, अगर आप बहुत इतने हम कह सकते हैं स्ट्रांग नहीं है, क्लेवर नहीं है, उतने भी आप हम कह सकते हैं कि करेजियस नहीं है, तो आप पकड़े जाते हैं तो आपको फिर प्रिजन में डाल दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी आर्मी में ज्वाइन किया ले जाते हैं। दिस इज़ द ओल्ड वर्ड। ओके, इसका मीनिंग वो भी होता है। सो हियर आई लर्न हाउ टू होल्ड माई ब्रीथ एंड डेवलप सम डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब कि कुछ करे जाना। ओके, कि सामने जाने से हम कहते हैं ना कि सामने जाना, लड़ना, झगड़ना। तो कबड्डी में आपके पास सबसे बड़ा होना चाहिए करेज,
डेयरिंग होनी चाहिए कि हाँ मैं रेड लेके जाऊंगा, मैं एक दो प्लेयर को आउट करूंगा, अगर मैं पकड़ा भी जाता हूँ तो मेरी पास उतनी पावर होनी चाहिए कि मैं वो मिडल लाइन को क्रॉस कर सकूँ, दैट इज कॉल्ड डेयरिंग. But I could not survive for too long before being taken as a prisoner of war. हाँ, हमारे जो राइटर है वो इतने अच्छे नहीं थे कबड्डी में. ओके, वो बार बार आउट हो जाते थे, मतलब डेड हो जाते थे. दिस इज कॉल्ड प्रिजनर ऑफ वॉर. तो उन्हें साइड में, मतलब टीम के बाहर बैठना होता था और उनको वेट करनी पड़ती थी अपनी रिवाइवल की, जब तक कि वो वापस गेम में वापस ना आ जाए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4, the street games of India, in which we have discussed many street games. Okay, all these games are very very popular. Okay, and are played all the corners of our country. As I told you, we are very we can say we are very proud that yes, and we are very lucky that we are playing this kind of games in this century also. As I told you, you are of the 21st century, so please try to learn these games and try to play these games when the time, or we can say when this situation will pass on. Okay, but these are the street games of India, and these games are very 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 popular, and we can say very enjoyable, very funny, and also gives us a kind of message that yes, how to play the honest games, हाउ टू प्ले विथ फ्रेंड्स. ओके, रियल फ्रेंड्स, जो हम हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ कौन सी गेम खेली जाती है और कैसे खेली जाती है. हाँ, वी हैव सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स. सो इन दिस यूनिट द मेन इंटेंशन, जो हमारे राइटर का मेन इंटेंशन है वो ये है कि गेम्स क्यों खेली जाती है, कैसे खेली जाती है, और हम उस गेम के बाद हमें क्या क्या मिलता है. ओके, गेम खेली जाती है हमारी इंटरेस्ट की वो, और हमारे जो हम कहते हैं ना कि टाइम जिसे स्पेंड करना होता है हमारे फ्रेंड्स के साथ, उसकी वजह से खेली जाती है. सेकंड थिंग, व्हेन वी आर वेरी स्मॉल, तब आपको उतना ज़्यादा बढ़ना, और कह सकते हैं कि पढ़ाई का उतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन तब भी जो गेम्स होती है वो खेली जाती है. आप बड़े भी हो जाओ तब भी आपको, हम कह सकते हैं ना कि जो ब्रेक लेना होता है पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, होमवर्क करने के बाद, या कोई एग्ज़ाम के बाद जब ब्रेक होती है, तब भी आप बहुत सारी गेम्स खेल लेते हैं और खेल सकते हैं. हर रोज़ तो खेलना ही होता ही है. इन इंडिया द मोस्ट फेमस गेम इज़ क्रिकेट. वन ऑफ देम इज़ गली क्रिकेट, एज आई टोल्ड यू. सो यस, दिस काइंड ऑफ गेम्स आर स्ट्रीट गेम्स ऑफ इंडिया. Yes, students, so I will complete, or I can conclude this session with the explanation of this fourth chapter, Street Games of India. In the next session, we will start the explanation of, as I we can say, the question answers, true, false, and different exercises. And another session, we will continue the grammar portion also. Okay, so till then, goodbye. Thank you.